अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। हाँ जी, तो लास्ट कल तक हमने देखा था what is meant by the inductance, and we see that how you can determine the inductance of a air core inductor, and also see that how we can determine the inductance of a iron core inductor. We also see that what is meant by the inductance. Inductance is actually the property which show that how the coil opposes the change in current. Okay? Then we have the expression for the inductance. It means the inductance depend upon the geometry of the coil. In a coil, we have some cross-sectional area, we have a length and the number of turns. So you can write L is equal to mu naught N square A by L. So here, what is the L? L is the inductance and its unit is the Henry. Mu naught is a constant and this is called the permeability of the free space. And its value is the 4 pi into 10 raised to power minus 7 Weber per ampere meter. N is the number of turns. A is the cross-sectional area, inner core cross-sectional area. And L is the length of the coil. But if the coil is bounded on the sum, and where is the remaining class? Only the 27 students still appear in the class. Where are the other one? सर ज्वाइन कर रहे हैं। So अगर आपका ये कॉइल जो है ये आयरन कोर हो तो उस सूरत में what the expression for the inductance we have mu naught mu r a n square by L. Now we see that the unit of the inductance is Henry. So the inductance is said to be the 1 Henry when 1 volt EMF appear across the ends of the inductor by changing the current of 1 ampere per second. अगर आप 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट को चेंज करते हो तो उस सूरत में आपकी कॉइल में जो इंडक्टेंस होगी वो 1 हेनरी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ टू द चेंज इन करंट, लाइक दिस। सो you can say that it is the ratio of 1 volt to the 1 ampere per second. यहाँ तक तो मेरा ख्याल कल हमने कर लिया था, ये आगे भी कुछ कर लिया था। Now we see that how a inductor can be placed in a circuit. There are the two different ways to place the inductor in a circuit. You can place the inductor either in series or in parallel. अब देखें इंडक्टर्स जो हैं उनका बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टर का बिहेवियर है। अब रेजिस्टर क्या काम करते हैं? रेजिस्टर जो है वो ऑपोजिशन देते हैं टू द फ्लो ऑफ चार्ज, इट मींस गिव द ऑपोजिशन टू द करंट। सिमिलरली
इंडक्टर्स जो है दे आल्सो प्रोवाइड द ऑपोजिशन अगेंस्ट द चेंज ऑफ करंट। एक में सिंपल करंट को अपोज करें, दूसरे में चेंज ऑफ करंट को अपोज करेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ ईच इंडक्टर इज सिमिलर टू द एज अ रेजिस्टेंस। और आप लोग जानते हैं कि अगर रेजिस्टर्स को सीरीज या पैरेलल अरेंज किया जाए तो देन व्हाट हैपन। अगर आप रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हो तो उस वक्त में टोटल रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। और जब आप पैरेलल लगाओगे तो फिर आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। So now we have here resistors which are connected in series like this. इस तरह की arrangement है। So then what will be the total inductors? In this way you can say that अगर आपकी inductors series में लगे हुए तो then the total inductors will be the sum of the inductance of each resistor. So from here what you see? From here we see that कि जब आप इंडक्टर्स को सीरीज अरेंजमेंट में लगाओगे तो आपका जो टोटल इंडक्टेंस होगा उसका जो वैल्यू है वो इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस की वैल्यू से ज्यादा होगा। So here let me consider the 3 inductors or 4 inductors of different values. तो अगर आप इनको sum up करते हो तो you can find the value. Now we see the inductors which are connected in parallel. अब देखें, you also see the parallel arrangement of resistors. और उसमें आपने क्या देखा था? उसमें हमने ये देखा था कि total resistance का जो reciprocal है that is equal to the sum of reciprocals of the individual resistances. So you can write 1 over RT is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 up to 1 over Rn. इसी तरह अगर आपकी इंडक्टर्स जो है ये पैरेलल अरेंजमेंट में लगा हुआ है तो उस वक्त में यू कैन से दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंडक्टर्स इज इक्वल टू द sum of reciprocal of the individual inductors. So you can write 1 over LT is equal to 1 over L1 plus 1 over L2 plus 1 over L3 and so on up to 1 over Ln. So you can write, you can determine the total inductance in this way, and in this way what you see कि अगर आपके इंडक्टर जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो आपकी जो इंडिविजुअल सारी जो टोटल इंडक्टेंस होगी इसकी वैल्यू जो है दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल इंडक्टर्स। Like this is arrangement in when the inductors are connected in parallel. Now here we have to determine what will be the total inductance. LT आपने find out करना है। अगर आपके पास ये 3 इंडक्टर्स जो हैं ऑफ वैल्यूज 10 millihenry, 5 millihenry and 2 millihenry are connected in parallel. So you can say that the 1 over LT जो है that is equal to 1 over 10 plus 1 over 5 plus 1 over 2. So in this way you can determine the total inductance. अब देखें जब हमने ये पैसिव एलिमेंट शुरू किए थे तो मैंने आपको ये कहा था कि इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर द एसी कंपोनेंट्स। ये एसी कंपोनेंट्स हैं। Why we call the inductor and capacitors are the AC component? What is the reason?
जी जी, इनको हम एसी कंपोनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि सर ये डीसी करंट को ब्लॉक करते हैं। बिकॉज ये दोनों कंपोनेंट जो हैं ये एसी को रिस्पॉन्ड करेंगे। दोनों कंपोनेंट जो हैं ये डीसी के लिए एज अ ओपन स्विच के तौर पर अप्लाई होंगे। व्हाट इज meant by the open switch and closed switch? ओपन स्विच से क्या मुराद लिया जाता है जी? ओपन स्विच हो तो ऑफ होता है, क्लोज क्लोज स्विच हो तो ऑन होता है। जी जी, ओपन स्विच में रेजिस्टेंस कितनी होती है और करंट कितना होता है? सर ओपन में सर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगी। और करंट? सर करंट तो सर फिर फ्लो ही नहीं कर सकेगा सर। फ्लो ही नहीं करेगा, में करंट विल बी द जीरो। और अगर क्लोज स्विच हो तो उस वक्त में रेजिस्टेंस कितनी होगी? स्मॉल होगी। स्मॉल या मिनिमम। और करंट कितना होगा? करंट मैक्सिमम मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा। अब अगर आप ये बताएं कि अगर स्विच ओपन है तो उसके टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, या उसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अगर स्विच ओपन है तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स? जीरो। जीरो होगा। सर सेम ही होगा मेरे को जितना। सेम से क्या मुराद लेते हैं? मैक्सिमम। प्रेस करें। सर मैं अगर जितना हम वोल्टेज दे रहे हैं मैम सर अगर वो किया हमने अप्लाई कर रहे ओपन हो, किया हुआ है मसलन अगर तो आपका वोल्टेज एक स्विच वोल्टेज जो है लगाते हैं वहाँ। उसके अक्रॉस एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और स्विच ओपन है, तो फिर एक टर्मिनल पे पोटेंशियल आपका होगा 5 वोल्ट और दूसरी टर्मिनल पे पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना? 5 वोल्ट का। आप ये बताएं कि स्विच के कौन से टर्मिनल पे पोटेंशियल 5 होगा और कौन से टर्मिनल पे पोटेंशियल 0 होगा? पॉजिटिव पे 5 और नेगेटिव पे 0। कि वो टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा होगा उस पे 5 होगा और वो टर्मिनल जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगेगा उस पे पोटेंशियल 0 होगा। चलो ये बात तो होगी। अब हम बात करते हैं क्लोज सर्किट में। आप ये बताएं कि किसी भी क्लोज सर्किट की सूरत में what will be the potential difference across the terminals of the switch? सर मिनिमम। कितना मिनिमम? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 जी 0 0 होगा। क्यों 0 होगा, जरा मुझे रीजन भी बता दो। सर क्योंकि करंट फ्लो कर रहा होगा। करंट फ्लो तो करेगा, पॉजिटिव से इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। और जब दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी तो देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। तो रिमेंबर फॉर द फ्यूचर, अगर स्विच ओपन है तो 3 बातें याद रखें। अगर स्विच ओपन है तो रेजिस्टेंस विल बी द इनफाइनाइट, current will be 0 but the potential difference will be maximum। और अगर आपका स्विच क्लोज है तो रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम and current will be maximum and the potential difference will be 0। Understand? Yes, sir. अब देखें, अभी हमने कहा कि इंडक्टर जो है ये एसी कंपोनेंट है और इट मीन कि इट कैन रिस्पॉन्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सिग्नल।
तो फिर हम देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस से हम क्या मुराद लेते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? किसी भी इंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम रिएक्टेंस कहते हैं। जिस तरह किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को हम किसी भी रेजिस्टेंस की ऑपोजिशन को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी तरह इंडक्टर में जो ऑपोजिशन हो रही है उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस बोलेंगे। एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय XL। इसको हम XL से रिप्रेजेंट करेंगे। सो बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन द resistance of the inductor. As the inductor is the AC component, so it means it only responds upon the frequency of the AC signal, where as it behaves as a closed switch for the DC source, because the frequency of the DC source is 0. अब देखें, सीधी सी बात है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि इंडक्टर जो है ये एज अ ओपन स्विच के तौर पर एक्ट करेगा फॉर द डीसी सोर्स के लिए, जबकि फॉर द इट एक्ट एज अ क्लोज स्विच ओनली फॉर द एसी सोर्स। सो क्योंकि डीसी सोर्स जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? उसका फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 0, जबकि एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज अबाउट 60 हर्ट्ज फॉर द सिग्नल्स जो कि हम घरों में यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द साइनोसाइडल करंट। व्हाट इज मेंट बाय द साइनोसाइडल करंट? सर जो वेव की फॉर्म में होती है। जी, साइनोसाइडल करंट क्या होता है? सर जो वेव की फॉर्म में करंट मूव करते हैं। साइनोसाइडल करंट जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल होता है? सर यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल होता है। कौन सा करंट यूनिडायरेक्शनल होता है? कौन सा करंट यूनिडायरेक्शनल होता है? डीसी करंट जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, जबकि एसी करंट जो है ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल से मुराद ये हुआ कि अगर आप साइन वेव ड्रॉ करें तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स पर होगी, लेकिन डीसी में करंट या तो सिर्फ पॉजिटिव होगा या सिर्फ नेगेटिव होगा। अच्छा जी, सो the symbol for the reactance is XL and its unit is the what? Its unit is the ohm. What is the formula for the XL? The XL you can write it is equal to 2 pi FL, where the capital L represent what? Where the capital L represent the inductance of the coil, F represent the frequency of the signal. तो अगर इसका मतलब ये हुआ from here what you see कि जैसे जैसे आपका अगर L कांस्टेंट हो और जैसे जैसे आप F बढ़ाते जाओगे तो corresponding value of the reactance जो है वो भी इंक्रीज करेगा। Thus you can say that L is directly proportional to F for the constant value of L. हाँ जी, बात क्लियर हो गई? यस सर। Now you have to determine, एग्जाम्पल है कि आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस डिटरमिन करनी है कि अगर साइनोसाइडल वोल्टेज जो है कि 10 किलोहर्ट्ज का हो। ये किलोहर्ट्ज किस चीज का यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का। That is the unit of the frequency or is applied across a inductor of inductance 5 millihenry। तो आपने बताना है कि इस सूरत में इसकी
इंडक्टेंस जो है वो कितनी होगी। तो here we have XL is equal to 2 pi FL. So 2 pi F is the what? That is the 10 kilohertz. You can write 10 times positive 3 hertz, and L is the 5 millihenry. So you can write 5 into 10 raised to a minus 3. So what the answer you have? You have the 314 ohm. इसका मतलब ये हुआ कि in this way you can determine the inductive reactance. ठीक है, इसको चीज को याद रखना है। अब देखें, now we have the signals whose frequency changes from 1 mega to the 10 megahertz, and that is passing through applied across an inductor of inductance 250 microhenry. फिर ये पूछता है अब ये है कि आप बताएं कि इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी होगी। Again, the inductive reactance is determined by the formula that is a 2 pi FL. तो इसका मतलब from here, from the solution of this problem, what you see from solution of this problem, you see that कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो देन उसके क्रॉसपान इंडक्टेंस जो है वो भी इंक्रीज कर जाती है। मतलब फॉर द 1 मेगाहर्ट्ज के लिए द इंडक्टेंस रिएक्टेंस इज दिस वन 1570, लेकिन अगर 10 मेगाहर्ट्ज हो तो उसके लिए आपके पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस बनेगी वो ये आएगी। Now we see that कि अगर इंडक्टर्स आपके सीरीज या पैरेलल में लगे हुए हैं तो उस सूरत में उनकी रिएक्टेंसेस क्या होंगी, आपने रिएक्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब देखें, अभी आपने देखा कि अगर सर्किट के अंदर इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो फिर टोटल इंडक्टेंस जो है वो आप डिटरमिन कर सकते हो बाय एडिंग द इंडक्टेंस ऑफ द ईच कॉइल। और इसी तरह अगर इंडक्टर्स जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं तो देन you can determine the total inductance by taking the sum of the reciprocals. तो अब हम देखना चाहते हैं कि इनकी रिएक्टेंसेस कैसे आप डिटरमिन करोगे। अगर सीरीज में लगा हुआ है सर्किट तो देन द रिएक्टेंस कैन बी डिटरमिन इन दिस वे, द टोटल रिएक्टेंस कैन बी डिटरमिन एज द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल L1 प्लस द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल L2 plus the reactance of the coil L3 and so on. ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वो पैरेलल में लगा हुआ है तो then the reactance is determined in this way. It is equal to the 1 over XL1 plus 1 over XL2 plus 1 over XL3 and so on. So again we see here कि अगर इंडक्टर जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं तो उस सूरत में उनकी जो टोटल रिएक्टेंस होगी दैट विल बी ग्रेटर। लेकिन अगर सर्किट में इंडक्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो उस सूरत में यू कैन से दैट कि उनकी जो टोटल इंडक्टेंस होगी या रिएक्टेंस होगी वो स्मॉल होगी। तो हियर वी हैव, अगर आपके पास एक सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इंडक्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, देन द टोटल रिएक्टेंस कैन बी डिटरमिन्ड इन दिस वे, दैट इज XL1 XL2 डिवाइडेड बाय XL1 प्लस XL2। बस यू हैव द एग्जांपल लाइक दिस। हाँ जी, फाइंड द टोटल रिएक्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट में इंडक्टर जो है वो सीरीज में है जब दूसरे में पैरेलल में है, तो आप सबसे पहले क्या चीज डिटरमिन करोगे? जी, गिव मी द आंसर। सर XL।
जी XL किसकी मालूम करोगे सबसे पहले? सब सर L1 A1 1 की। तो क्या फार्मूला XL1 बनेगा? XL1 क्या होगा? What will be the 2 formula? 2 pi FL 2 2 pi pi FL FL1 और इसी तरह XL2 क्या आएगी? 2 pi 2 pi FL2. FL2. What is the value of F here? 200 kilohertz. 200 200 किलोहर्ट्ज है। तो फिर XL1 क्या आ जाएगा? 2 पाई 200 किलोहर्ट्ज मल्टीप्लाई 2.7 मिली हेनरी। इसी तरह L2 आ जाएगा आपके पास 2 पाई इंटू 200 किलोहर्ट्ज इंटू 4.7 मिली हेनरी। ठीक है, तो आप इनकी दोनों क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं तो इन दोनों रिएक्टेंसेस को आप सम अप कर लोगे। इसी तरह दूसरे सर्किट के अंदर आपकी दोनों इंडक्टेंस जो है वो पैरेलल लगी हुई है। तो अगेन यू फाइंड फर्स्ट डिटरमिन द इंडक्टेंस ऑफ द ईच कॉइल। तो फिर टोटल क्या आ जाएगी? टोटल आपके पास बनेगी 1 over XL equal to XL total equal to 1 over XL1 plus 1 over XL2। तो इसका आप निकाल सकते हैं। अब XL1 और XL2 अभी आपने पीछे देखा कि कैसे डिटरमिन की जा सकती है। ऑलराइट, अच्छा ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हाउ यू कैन अप्लाई द ओम्स लॉ। आप मुझे ओम्स लॉ की 3 डिफरेंट इक्वेशंस बताएं। व्हाट आर 3 डिफरेंट इक्वेशंस फॉर द ओम लॉ? V is equal to IR जी I is equal to V by R ठीक, R is equal to V by I आर इज इक्वल, ये दे दिया 3 डिफरेंट इक्वेशंस। ठीक है, तो इसी तरह क्योंकि जाहिर है इंडक्टर के अंदर भी रेजिस्टेंस है और करंट भी फ्लो कर रहा है, तो फिर हम देखते हैं कि हाउ वी कैन राइट द ओम्स लॉ। अब देखें, इन द केस ऑफ द इंडक्टर्स द रेजिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? रेजिस्टेंस को किस चीज से आप रिप्लेस करोगे? रिएक्टेंस। XL से Reactance. रिप्लेस करोगे। Then what will be the equation for the Ohm's law for the inductor? V is equal to IL V is equal to I XL XL. Good. This will be the equation for the Ohm's law in the case of the inductors. So the reactance of the inductors is similar to the resistance of the resistor. In fact, XL is just like same as the R and XC. So then the inductive reactance is the form of the opposition to the current. Then Ohm's law applies to the inductive circuit as well as the resistive circuits and capacitive circuit and defined as I is equal to V over XL. अच्छा, अब देखें, अगर आपकी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो देन व्हाट हैपन विद द करंट? करंट कम हो जाएगी, ज्यादा होगी? डिक्रीज करेगी। करंट जो है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो? इस इक्वेशन में आप ये देख रहे हो कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो आई और एक्सएल जो है ये दोनों क्या हैं? ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी पर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से एक्सएल बढ़ेगा, लेकिन उसके क्रॉसपॉन्ड करंट जो है वो भी कम हो जाता है। एनी क्वेश्चन अबाउट टू दिस? इंडक्टर्स तक कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के ज़हन में हो
तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये पैरेलल वाला दोबारा समझा दें। पैरेलल वाला दोबारा समझा दें, चलिए वो भी समझा देते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, ये पैरेलल वाला, दिस वन। यस सर। अब देखें, अभी आपने पीछे इंडक्टेंस निकाली है। इंडक्टेंस के लिए फार्मूला में यूज, सॉरी रिएक्टेंस निकाली है। रिएक्टेंस के लिए फार्मूला हमने क्या यूज किया, 2 पाई एफ एल। So here again you find what is the XL for this inductor and what is the XL for this inductor. इसके लिए XL क्या आ जाएगी, that is the 2 pi into 200 into 2.7, और इसके लिए क्या आ जाएगी, इसके लिए 2 pi into 200 into 4.7। ये आपने Yes, दोनों रिएक्टेंसेस जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। अब देखें, अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया है कि अगर आपकी दो इंडक्टर्स जो हैं वो पैरेलल में लगी हुई हैं तो उस सूरत में इंडक्टेंस कैसे निकाली जाती है। दिस इज अ फार्मूला, यस सर। XL1 into XL2 divided by XL1 plus XL2। ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे अगर दो सर इंडक्टर्स जो हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बात क्लियर हो गई। यस सर। और अगर दो से ज्यादा हो फिर कैसे निकालोगे। सर फिर भी अगर फर्ज करें ये 3 है तो आप कैसे टोटल इंडक्टेंस फाइंड आउट करोगे। सर ऊपर भी अपना उस 3 तक ले का सम जाएंगे। लेंगे सर। आप सर थ्री तक 3 ले पर लेंगे। ऊपर 3 तक मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड करेंगे और वो बराबर होगा रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रिएक्टेंस। इन दिस वे यू कैन डिटरमिन। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो जो ओपन सर्किट है सर, उसमें सर अगर हम कोई सर्किट ओपन है तो सर जहाँ से ओपन है हम वोल्ट मीटर लगाते हैं अगर, हाँ तो जी, सर क्या हाँ ठीक बात कर रहे हैं। जब टर्मिनल पे वोल्ट मीटर लगाओगे तो वो कितनी वोल्टेज देगा। यस सर। सर क्या उसकी वो सेम ही रहेगी। वो कितनी होगी, फर्ज करें कि 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग रीड करेगा। सर आई थिंक 5 ही करने चाहिए सर, क्योंकि वो उसको एक कनेक्शन मिल जाएगा। वो 5 वोल्ट ही रीड करेगा। द रीजन दिस वन बिकॉज द one terminal of the switch is connected with the positive terminal of the battery and the other terminal is connected with the negative terminal। जो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा वही स्विच के पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा और जो नेगेटिव पे होगा वही स्विच के नेगेटिव पे होगा। इसलिए वोल्ट मीटर जो है ये आपकी वोल्टेज मेजर करेगा। अब देखें, अगर आप इस वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाते हो तो क्या ये वोल्टेज मेजर करेगा। जी, अगर आप इसको सीरीज में लगाते तो क्या ये मेजर करेगा। नो सर। नहीं करेगा,
क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल अरेंजमेंट में लगाया जाता है। तो वो कौन सा मीटर है जो आप सीरीज में लगाते हो? एमीटर। 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 तो अब आप ये करें, इस मीटिंग को एंड कर लें और अगली मीटिंग ज्वाइन कर लें।